Firstly, we understood what is the importance of CC bond formation and what is the role of the organometallic. If you see these two complicated molecules, these are specifically found into the insect. Okay, hormone and enzymes is there. So in with that you can see there is a number of double bond in this molecule and number of carbon-carbon bond is also you can see here. Okay, but in that you can see there's a dark line in between to the carbon-carbon. The dark line it is formed by the organometallic compound. Okay, so if you see that the first molecule is a Cyprothea julia hormones, and this molecule you can see there is a total 16 cc bond found in this molecule, and in this molecule this dark line, this line you can see here. So there is a 7 bond is there. It is formed by the organometallic reagent. Okay, so this is the important that make it more valuable to the organometallic compound in the organic synthesis. Okay, so second one is there. So this is an enzyme. Okay, so this enzyme you can see there is a near about 20 cc bond in this molecule, and out of that the 8 bond is formed. This is indicated by this dark line. It is formed by the organometallic reaction. Okay, so from this type of reaction we can understood the value of organometallic compound in the organic synthesis for the formation of CC bond. Because in this two parts of this chapter, first part from a carbanion inolate and second one is organometallic compound. In this two part we are seeing about how to form the bond in between two or new bond in between two carbon-carbon. Means CC bond formation we are understood by using a different anions and by using a organometallic compound. Okay, so now we see the polarization or how it become to be the carbanion. It behave like a nucleophile in organometallic compound. Okay, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें अल्किल हैलाइड का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या होता है जो कि हमने आज तक देखा है कि R bond with the X. Okay, so this R bond with X means this is the R, and R is a low electronegative or less electronegative atom than X means halide. Okay, so as compared to X, electronegativity is less, means it develops the del positive charge. We can see very clearly in this example. Okay, and X is having a more electronegative, means it having the negative charge. Okay, so this carbon become to be the positive charge. That means it become to be the electrophile. Okay, it become to be electrophile and it ready to attack by the nucleophile. But if you see when this carbon is bonding with the metal, so metal is a more electropositive. So that's why there is a del positive charge develop on the metal. And carbon comparative to this metal is more electronegative. Because of that, there is a negative charge. Okay, so now we can see very clearly in this example, carbon having positive charge act as the electrophile, but in organometallic reagent, we can see here there is a carbon having a negative charge and it acts as to be the nucleophile. Okay, this is the polarity in the organometallic compound. So firstly, we are studying about the Grignard reagent. As we know some historical background about the Grignard reagent, Grignard, Auguste Victor Grignard, in 1871 and 95, their total duration, and it was awarded by the Nobel Prize for the discovery of Grignard reagent. Okay, so Grignard reagent, it is formed, or Grignard reagent is also called as the organomagnesium halide. It's simply called as the organomagnesium halide. So it is prepared by using this type of experiment, firstly carried out by the Grignard. Okay, so in which that alkyl halide, it is inserted by the magnesium metal. It is inserted by magnesium metal in the presence of ether is a solvent. Ether is a solvent, and you can see there is a insertion of this magnesium is occurring between to this R and X, and we get this type of molecule is known as a RMGX. Okay, so here R is a carbon, any type of alkyl halide, any type of aryl halide.
we can use for the preparation of Grignard reagent. Means aromatic and aliphatic Grignard reagent you can be formed by using a different type of alkyl halide. So it's structure like this. This is the RMGX. This R may be the aliphatic or aromatic. Okay. So simply this is the R having a negative charge and magnesium having a positive charge. So here this R acts as to be the nucleophile. Okay. So this is the simple apparatus it is used for the preparation of the Grignard reagent firstly. So you can see here, here this is the metal, this is the magnesium metal, and from the one side there is a solution of alkyl halide is added from this side, and here the solvent is the ether, and this continuously this alkyl halide react with this magnesium, and magnesium is inserted in between to this R and X. You will get this type of alkyl halide, alkyl magnesium halide or aryl magnesium halide if you use the aromatic iodide or any type of aromatic halide. Okay, so one of the example, this simply we can also call as the oxidative insertion. या इस इंसर्शन को हम ऑक्सीडेटिव इंसर्शन भी कहते हैं. इंसर्ट हो रहा है ना मैग्नीशियम इन बिटवीन टू आरएक्स, तो इसको ऑक्सीडेटिव इंसर्शन भी कहते हैं. कैसे कहते हैं, देखो ये जो है अल्किल हैलाइड यूज किया हमने फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है ना. ये अल्किल हैलाइड में जो CBr बॉन्ड है, इस CBr बॉन्ड के बीच में मैग्नीशियम जाएगा, इससे इस वजह से हम उसको कहेंगे इंसर्शन, है ना. इसे क्या कहेंगे, इंसर्शन. अब सेकंड चीज जो है ये ऑक्सीडेटिव रीइंसर्शन क्यों है, इसके बारे में हम देखते हैं. ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन होता होगा करके इसे हम ऑक्सीडेटिव कहेंगे, है ना. तो इसमें जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम बिफोर द रिएक्शन विद RX you can see this magnesium having a zero oxidation state. There is a zero oxidation state, and when it react with the alkyl halide and insert in between to CBr, then you can see this type of structure is formed. Here, this magnesium form one bond with this carbon and second with this bromine. Okay, and now this magnesium become to be the +2 oxidation state. Okay, means from 0 to +2 oxidation state. So this process is known as to be the oxidation. So that's why this insertion is known as to be the oxidative insertion. Then preparation of Grignard reagent, very simple preparation method is there. Okay, radical mechanism is there, because the metal gives the electron, single electron, and then again it gives a single electron, means 2 electron is given in the radical mechanism is shown. So we can see here there is a magnesium react with the alkyl halide in the ether. In the presence of the ether, we get this Grignard reagent. Okay, so the mechanism is here. This magnesium, this 2 electron, 1 electron gives here. Okay, so due to that, this X is binding with this magnesium, and we can see the one radical is formed on the R. Okay, then again there is a 1 electron, and this single electron from magnesium and one from the R. So this 2 radical is combined, and finally we get this molecule is the RMGX. Okay, you can see very simply this simple method for the preparation of Grignard reagent. Okay, simply the insertion of Mg in between to the alkyl halide. Again, we can see the first reaction, there is a radical formation is a RDS, means the rate determining step is there, because there is a firstly stable molecule converting to the unstable molecule. So that's why this is the slow process. Okay, it takes more time, and that's why this step is a rate determining step. Okay, and in second step there is the unstable molecule converting to the new stable molecule. So that's why it is a fastly conversion. So it is not a rate determining step. देखो इसमें कुछ एग्जांपल है जो कि अल्किल हैलाइड को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल हैलाइड वी प्रिपेयर द डिफरेंट ग्रिग्नार रिएजेंट. देखो सिंपली हम अगर मिथिल आयोडाइड को यूज करते हैं, मैग्नीशियम एंड ईथर एज द सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हमें ये जो MEI है इसके बीच में जो है मैग्नीशियम हमको जाते हुए दिखेगा, तो हमें यहाँ पे MEMgI जो है ये ग्रिग्नार रिएजेंट जो हमें मिलता है, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड. अगर हमें इस तरह से अगर हमने अल्किल हैलाइड लिया तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम जो है ये इंसर्ट होगा इन बिटवीन टू दिस कार्बन एंड क्लोरीन, एंड वी कैन सी दिस टाइप ऑफ अल्किल this alkyl magnesium halide is formed, also called as the Grignard reagent. Okay, then another example for the preparation of Grignard reagent, this is the allyl type of Grignard alkyl halide. So this allyl react with this magnesium, so magnesium insert in between this carbon and chlorine bond, and we get this allyl magnesium
halide. The cyclic alkyl halide we use for the preparation of Grignard reagent. Then we can see here is magnesium, but now we use the THF is a solvent. Okay, in the some next slide we are understood why we use the ether and THF for the preparation of Grignard reagent. Okay, not other than other solvents. What are the causes for that? Okay, but now we are seeing here this magnesium insert in between to this carbon and chlorine, and we get this type of Grignard reagent. Okay, now we use the aromatic alkyl halide. So now we can see here there is a this bond, this carbon and iodine bond, and in between that magnesium is insert, and we get this type of Grignard reagent also. Okay, so these are all the Grignard reagent we can be formed by using different alkyl halide as per our desirable product, and as per our requirement you can use the different alkyl halide and prepare a different type of Grignard reagent. Okay, but one thing we have to be understand here, ऑल द ग्रिग्नार रिएजेंट, सब जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसमें ये वाला जो कार्बन होता है जो कि मैग्नीशियम को अटैच होता है, ये कार्बन जो है ये निगेटिव चार्ज बियर करता है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन जो है निगेटिव चार्ज बियर करता है, ये वाला कार्बन जो है निगेटिव चार्ज, मतलब ये सारे कार्बन जो है ये निगेटिव चार्ज बियर करते हैं एंड इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब व्हाई यूज ईथर एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ईथर हम क्यों यूज कर रहे हैं, टीएचएफ क्यों यूज कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखो क्या होता है, इफ यू यूज द प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को जब हम यूज करते हैं, दो टाइप के होते हैं ना, पोलर प्रोटिक है ना प्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज किया तो क्या होगा, ये जो RMgX है इसमें ये जो R है इट हैविंग नेगेटिव चार्ज, और जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो वहां पे एक एसिडिक प्रोटॉन होता है ना, और ये जो एसिडिक प्रोटॉन होता है, ये वाला जो प्रोटॉन होता है, इसे ये जो है R इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे अल्केन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और ये जो पूरा ग्रिग्नार रिएजेंट जो है, दिस ग्रिग्नार रिएजेंट इज collapse, simply called as a destroy, है ना, and it not available for the further reaction, है ना। मतलब जैसे ही RMgX बन रहा है due to the solvent, polar protic solvent, alcohol solvent like water solvent, so this Grignard reagent convert into the R and H, means this is the alkane, ठीक है ना, ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये अल्केन बनता है तो ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट है हमें दिख रहा है RMgX, तो ये अवेलेबल नहीं होगा रिएक्शन के लिए, है ना। तो इस वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यूज नहीं करते, अवॉइड दिस प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इस जगह पे हमने क्या किया, ईथर को यूज किया, THF को यूज किया। अब इसमें पोलैरिटी तो दिखती है बट देयर इज नो प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय द R negative, okay, means due to the use of the ether and THF, this RMgX is remain for the further reaction, okay, and it is become the more stable structure it is obtained during the reaction, because if you see the RMgX, there is a positive charge on the magnesium, and if you see the ether molecule, so oxygen having a negative charge, so there is a secondary interaction is found in between to Mg and O. So this secondary interaction, this is simply called as a solvation, okay, and that solvation may provide the stability to the RMgX and this ether solvent interaction, okay, and in during this interaction the energy is released, this is the exothermic interaction, okay, and that energy is furtherly used for the reaction, for the product formation, okay. So these are the two reasons make the sophistication and make the easier to use of this ether and THF type of solvent during the Grignard reagent reaction, okay. तो ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ईथर को और ये जो THF को हम यूज करते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी चेंज होता है, THF के टाइम में हमें थोड़ी सी ज्यादा हीट जो है हम यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ईथर, ये हमें बाद में समझेगा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंसर्शन किस तरह से होता है देखो, अब अगर हम देखते हैं मैग्नीशियम का यहाँ पे जो होता है 3s जो वैलेंस शेल होती है 3s एंड 3p, तो वी कैन सी हियर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन 3s, ओके। तो ये प्रमोशन होके मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन होके इसमें क्या होता है RX जो है एक इलेक्ट्रॉन 3s का R के साथ में और एक X के साथ में, और फाइनली हमें इस तरह से जो है इसमें
ओवरलैपिंग होती हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे इस तरह से जो है जो बॉन्डिंग होती है RMGX में हमें देखने को मिलती है, कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है, अगर हम इस एनर्जी डायग्राम को देखते हैं तो इसमें हमें समझ में आएगा कि मैग्नीशियम जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा है। एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई देयर एनर्जी इज लेस एज कंपेयर्ड टू मैग्नीशियम। एंड सेकंड थिंग, इफ यू सी इन दिस, अगर दूसरी बात इसमें देखते हैं हम कि जो बॉन्ड बन रहा है इन बिटवीन टू मेटल एंड कार्बन, उस बॉन्ड में एक चीज और होती है कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमें दिख रही है, जिसे हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और सेकंड जो होती है एक सिग्मा स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग होती है ना। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये कार्बन सेंटर के नियर है, उसके करीब है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है इस RMGX बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो वो जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो है लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मेटल मैग्नीशियम का भी लेते हैं, तो ये कार्बन की जो ऑर्बिटल है इसका ओवरलैपिंग देखो आप कितना ज्यादा है इसमें। ठीक है ना। तो यही जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है यहाँ पे ये जो है यही हमें इंडिकेट करती है कि ये मैग्नीशियम से ज्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट होता है MgC बॉन्ड में। ठीक है, ये एक चीज होती है। तो कार्बन जब होल्डिंग करता है जो ये इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये निगेटिव चार्ज को, तो ये जो होल्डिंग होता है ये किस तरह का कार्बन है, मतलब को इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये भी उस पे उसकी रिएक्टिविटी पे जो है इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, मतलब रिएक्टिविटी किस तरह की रहेगी इस RMG बॉन्ड की, तो ये डिपेंड होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से है। ठीक है ना, अगर वो MgC वाला बॉन्ड जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है या sp है, ये डिपेंड करता है। ये हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में कुछ स्टडी करेंगे इसको, बट फिलहाल ये समझ लेते हैं। सेकेंड इज द रिएक्टिविटी। अब देखो यही हमें समझना है कि रिएक्टिविटी किस तरह से होती है इसकी RMGX में। ठीक है, R किस तरह से रिएक्टिव होता है, तो ये टोटली डिपेंड होता है कि वो कार्बन किस तरह का है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। ठीक है ना, वो sp है, sp2 है, sp3 है ना। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये तो है sp हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल जो है वो की है sp2 का, और ये जो है ये है sp3 का। हेलो, ठीक है ना, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। हेलो, यस सर। यस हेलो, यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है इसका अलग अलग। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये वाला कार्बन जो होता है यहाँ पे हम देखेंगे जाके नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है जो मैग्नीशियम के साथ में बाइंड होगा। तो इसकी जो s कैरेक्टर होती है वो होती है 50%, है ना sp में। उसके बाद में sp2 में देखते हैं हम तो यहाँ पे होती है 33%, है ना। और अगर हम sp3 में देखते हैं तो यहाँ होती है 25%, है ना। तो इस तरह से उसकी जो S कैरेक्टर जो है वो जो है इसका वेरिएशन होता है। और हमें पता है जितना ज्यादा S कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर होगी उसकी, उतने स्ट्रांगली वो जो है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज को अगर स्ट्रांगली होल्ड करता है तो वो डोनेट करने के लिए तो वीकली रिएक्टिव होगा, है ना, डोनेट करने के लिए वीकली रेडी होगा। तो उसको हम कहेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी जो है जैसे ही S कैरेक्टर बढ़ती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, है ना, मतलब बेसिसिटी कम होती जाएगी, उसका डोनेट करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम सिंपली कहेंगे विद इंक्रीजिंग S कैरेक्टर डिक्रीजिंग देयर रिएक्टिविटी, है ना, सिंपल सी बात है। 10 सेकेंड। और दूसरी चीज जो होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो हम उसके रिएक्टिविटी के बारे में जब बात करते हैं तो जो मेटल के साथ में जो कार्बन बाइंड होता है, तो मेटल तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे, ये देखो इस तरह के अलग अलग मेटल हो सकते हैं। और
कार्बन के साथ में बाइंड होके अलग अलग टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। बट वो सब की जो रिएक्टिविटी इज अ वेरिएबल, ठीक है, दैट ऑल डिपेंड अपॉन दिस बॉन्ड, एमसी बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी कैसी है, उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, इस पे डिपेंड होता है उसकी रिएक्टिविटी का। अब रिएक्टिविटी जो हम देखेंगे यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होती है ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है, यहाँ पे देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 जो कि sp3 में होती है, और sp2 में क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो कि 2.5 से ज्यादा होती है 2.75, और sp3 में और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जो कि होती है 3.29, ओके। और मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट में, तो ये अलग अलग टाइप की मिलेगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और इसमें यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है 1.5 -1.5, इधर -1.75, इधर -2.29। तो इसमें जो अगर हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये ज्यादा होता है ना, ये वाला, मतलब इसमें हम पोलैरिटी को ज्यादा देखते हैं, है ना, इन बिटवीन टू सीएम बॉन्ड। तो सीएम बॉन्ड जो होता है ये इस केस में ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू दिस टू, ठीक है ना। ये एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है। और एक सेकंड चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि ये डिफरेंट टाइप की जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये डिफरेंट है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी जो है हमें देखने को मिल रहा है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे उसकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग होती है अब इसमें रिएक्शन किस तरह से होती है, देखो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है हमें, ये जो कार्बन है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, और Mg है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक करके एक्ट होगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा और डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट होता है, ठीक है, ऐसे। अब उसकी कुछ रिएक्शन देखते हैं, जो कि हम पहले रिएक्शन जो है यहाँ पे हम उसका हाइड्रोलिसिस को वाटर के साथ में किस तरह से रिएक्शन होती है इसको स्टडी करेंगे। देखो हमने जिस तरह से कहा है जब भी हम वाटर को ग्रिग्नार रिएजेंट के या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है तो इसमें जो कार्बन होता है इट्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, है ना, और वाटर जो है इसमें एक हाइड्रोजन होता है, मतलब जो भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ का ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमें अल्केन मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा। मतलब इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जब हम देखेंगे तो उसमें जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वाटर क्या होगा, जो रिएक्ट होगा RMgX के साथ, और जो बी आर है यहाँ पे हम एज अ न्यूक्लियोफाइल करके उसको यूज करने वाले हैं, वो क्या होगा, ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पे ही इन फर्स्ट स्टेप ही रिएक्शन जो है ये एंड हो जाएगी और हमें जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं होगा फॉर द रिएक्शन विद अनदर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस वजह से ये एक सिंपल सी रिएक्शन हम कहेंगे वाटर के साथ में। वाटर जो है इस ऑर्गेनोमेटालिक को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, मतलब इसका जो अनायनिक नेचर है इसको कन्वर्ट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में यहाँ पे कर देता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है वाटर के साथ में, ठीक है। देखो अब रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में RMgX के देखते हैं, ठीक है। देखो पहले देखते हैं कि किस तरह से इसमें रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट होता है। देखो RMgX जो है यहाँ पे सिंपल सी, हमें इसका अगर एक रिएक्शन समझ गई तो हम पूरे रिएक्शन को इसको समझ जाएंगे, ना कि यही हम ऑर्गेनोलिथियम को इसी तरह से समझ सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनोलिथियम में एक सिंपल सा डिफरेंस है सिर्फ ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनोलिथियम में, कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम जो है उसमें मैग्नीशियम की साइज जो है ये थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्गेनोलिथियम, ये एक चीज। और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस जो है ऑर्गेनोलिथियम का ये बहुत ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू RMgX,
ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शंस होती है। अभी इससे पहले हमने देखा है कि जो कार्बोनाइन होता है, इनोलेट होता है, ये इसने किस तरह से कार्बोनिल पे अटैक किया। अब सेम ही है, इसी तरह से जो है इसमें भी हमें रिएक्शन देखने को मिल रही है, सिर्फ यहाँ पे जो रिएजेंट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे कार्बोनाइन था, इनोलेट था, है ना, इनामाइन था, है ना, अलग अलग टाइप के वहां पे हमने देखा। और यहाँ पे जो है ये RMgX हमें देखने को मिलता है, जो कि आर हैविंग, आर मीन्स कोई भी अल्किल हैलाइड या अरील हैलाइड जब हम यूज करते हैं तो ये आर हो सकता है, तो वहां पे ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये जो आर है, इट अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन अप हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर ये जब यहाँ पे चला जाता है तो निगेटिव चार्ज जो है it come on this oxygen, so we can see very clearly here this negative charge, and this negative charge is stabilized by this Mg, this counter-ion part of this R, this Mgx. So this is having the positive charge, so there is a positive negative interaction, and we can see here there is a secondary interaction is found in between O and Mgx. Okay, and this OMgx is nextly is hydrolyzed, है ना। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये जो है यहाँ पे इसका एक H जो है ये जाएगा O निगेटिव पे, और रिमेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था वो चला जाएगा MgX पे। ठीक है, तो इस तरह से जो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो फाइनली वी कैन सी वी गेट दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल, we get alcohol molecule, and second one is the MgX and OH is the second product. Okay, so simply we can see here when Grignard reagent react with the carbonyl compound, specifically aldehyde and ketone, then it convert into the alcohol molecule. Okay, it convert into the alcohol molecule, we can see here. ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड मतलब हम इस तरह का करते हैं इसको, है ना, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ में RMgX की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब हम रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे RMgX अभी स्टडी कर रहे हैं, तो RMgX का एग्जांपल है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी देन सेकेंड अल्डिहाइड। ठीक है ना, मतलब अगर हमने इस तरह से लिया एक सेकेंड अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, फॉर्मल्डिहाइड के बाद में जो होता है ना, एक मिथिल ग्रुप वहां पे अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, जो कि R इज इक्वल टू CH3 होगा, इस तरह का। अब इसके साथ में रिएक्शन होती है तो क्या होगा, ये जो R है ये अटैक कर देगा इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये इसका कन्वर्जन होगा अल्कोहल में, तो हमें क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना, मतलब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और इसके अलावा और कोई अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन के साथ में, मतलब ये वाली रिएक्शन हम देख रहे हैं, कीटोन के साथ अगर रिएक्शन होती है, कोई भी कीटोन, कीटोन के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमें टर्चरी अल्कोहल, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है हमें टर्चरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखेगा, टर्चरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाली चीजें होती है जब कार्बोनिल कंपाउंड में, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। अल्डिहाइड के साथ में जब ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट होगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। जब वो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एसिटाल्डिहाइड के समझ के आगे के कितने भी अल्डिहाइड हम लेते हैं तो उसमें जो है सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगा। अगर हमने कीटोन लिया, कोई भी कीटोन हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कोई भी कीटोन हो, कीटोन के साथ में अगर हमने ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन कर ली तो वहां पे हमें इस तरह से टर्चरी अल्कोहल ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन विद द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके साथ में क्या होता है रिएक्शन, देखो अब ये जो R है, R निगेटिव, ये जो R निगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड के जैसा ही C डबल बॉन्ड O है,
तो यहाँ पे अटैक होगा तो वन ऑफ द ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, जहाँ पे R जो है ये C के साथ बॉन्ड है। ठीक है, एक जो है इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, और एक जो है वहां पे O निगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, और इसके साथ में जो है Mg जो है वो बॉन्ड है ना, इसकी इंटरेक्शन में यहाँ पे Mg को देख सकते हैं। ये रिएक्शन की कंडीशन है। ठीक है ना, तो इस तरह से कन्वर्जन हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होती है तो। ठीक है ना, ये वाला कन्वर्जन मतलब हम इस तरह का मॉलिक्यूल को देखते हैं। और उसके बाद में जब हम इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देना मतलब इसको हम जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये के जो H है ये वाले कार्बन मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं ये इस तरह से जो है H2O मॉलिक्यूल रिएक्ट होगा। ठीक है ना, तो हमें ये जो H है ये जाएगा इधर और OH जो है ये जाएगा MgX की तरफ, तो ये MgX बना देगा। पर ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका कन्वर्जन अब किस में हुआ, कन्वर्जन इनटू द एसिड। ठीक है ना, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कन्वर्जन इनटू द एसिड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हम जब रिएक्शन कर देते हैं तो वहां पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है कि ये तो बेसिक रिएक्शन है। अब RMgX हम कैसे लेते हैं, मतलब मिथिल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं तो यहाँ पे हमें जो है R जो है ये CH3 दिखेगा, तो इसे हम एसिडिक एसिड कहेंगे। ठीक है ना, अगर हमने इस मिथिल ग्रुप के जगह इथिल लेते हैं तो हमें प्रोपेनिक एसिड मिलेगा, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हमने एरोमेटिक रिंग लेते हैं, बेंजीन लेते हैं तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो हम ये डिफरेंट टाइप का RMgX यूज करके डिफरेंट टाइप के हम वहां पे एसिड को बना सकते हैं। तो ये सिंपल से बेसिक रिएक्शन अगर हमें समझ में आती है तो बाकी की रिएक्शन जो है सिंपल से हमें समझ में आ जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है, इट गिव्स एसिड। इसका मैकेनिज्म भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें ये देखा ये बनता है पहले और बाद में जब इसके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो यहाँ पे एसिड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्माल्डिहाइड के साथ में अगर ये देखा हमने रिएक्शन होती है फॉर्माल्डिहाइड के साथ में तो R चला जाएगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ये ओपन हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। और यहाँ पे जब हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये जो है ये अल्कोहल देखने को मिलेगा, बट फॉर्माल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होते हुए हमें दिखाई देता है। देन हमने अदर देन फॉर्माल्डिहाइड अगर लेते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि हमने दूसरा अल्डिहाइड लिया जो कि फॉर्माल्डिहाइड नहीं है। ठीक है ना, इसमें एक R जो है ये सब्स्टिट्यूट है। अब ये R किसी भी तरह का रह सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। इट मे बी द मिथिल ग्रुप, इट मे बी द इथिल ग्रुप, दैट ऑल डिपेंड ऑन यू हाउ व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू हैव। ओके, तो इसमें जो है हमने ये लिया, तो इसके साथ ही RMgX भी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम RMgX को यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से हम यूज करके जो एक चीज हमें यहाँ पे बेसिकली समझनी है कि सेकंड अदर देन अल्डिहाइड को हम यूज कर रहे हैं, फॉर्माल्डिहाइड को अदर देन फॉर्माल्डिहाइड को यूज करते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये जो अल्कोहल है इसमें ये जो R है ये R अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दैट ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे CH3 लिया, मतलब एसिडाल्डिहाइड को अगर हम लेते हैं और यहाँ पे भी हमने क्या किया मिथिल लिया, मिथिल मैग्नीशियम हैलाइड को लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी मिथिल ग्रुप और इस साइड में भी मिथिल ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। मतलब दोनों भी R जो है ये है CH3 और ये भी जो है CH3। अब ये कोई भी वहां पे ग्रुप रहे, CH3 रहे, इथिल ग्रुप रहे, प्रोपिल ग्रुप रहे, बेंजिल ग्रुप रहे या कोई भी रहे, तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट है उसमें सेकेंडरी अल्कोहल ही यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कीटोन के साथ रिएक्शन होती है तो हमें पता है जो ये थर्ड वाला R है ये यहाँ पे चला जाएगा कार्बोनिल पे, तो इसका कन्वर्जन जो है ये टर्शरी अल्कोहल में हमें देखने को मिलता है। ये हमने देखा है पहले रिएक्शन में। अब उसी के साथ अगर इथॉक्साइड को लेते इपॉक्साइड को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो इपॉक्साइड जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होते हैं यहाँ के दो,
ठीक है ना। दोनों भी जो है एक ही जैसे है, कहीं पे भी अटैक करे RMGX कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट ड्यू टू द अटैक ऑफ द RMGX दिस रिंग इज ओपन अप एंड इट यूज अल्कोहल, है ना। ये क्या करता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये जो साइक्लिक रिंग है ये ओपन अप होगी ऑक्सीजन के ऊपर, और फाइनली यहाँ पे इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और हाइड्रोलिसिस करने के बाद इसका जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल बिकम टू बी द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है, ईस्टर के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं RMGX को यूज करके। अब RMGX में R जो है निगेटिव है, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर ओपन अप होगा, तो हमें ये इस तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड इस अटैक की वजह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा,